का नाम ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਮਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸਚੈ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਆਠ ਸਾਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸਨੋ ਦੇਵ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ
प्यार सह सरवण करिए। इस पावन अस्थान ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज शाम नूं 6:30 वजे तो लैके 10:30 वजे तक 40 मुक्तियां दा शहीदी दिहाड़ा मनाउंदियां होइयां विशेष समागम रखे गए है। इसी तरह शाम नूं हाज़रियां भर के सेवा सिमरन दे नाल जुड़ के सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर भाई सरवण सिंह जी होरा पासों सरवण किया है, ये 12 महाबाणी दे अंदर मांझ राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 135-36 अंग ते दर्ज है। नानक शाही कैलेंडर दे मुताबिक 11वां महीना है। कैलेंडर समय का एक कैलकुलेटर है
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਢਾਬ ਜਿੱਥੇ ਢਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਢਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
सेम अगे चली गई, सेम नाले निकल गए, धरती उपजाऊ हो गई। जिस मेरे अपने पिंड विच चिब्बड़ हुंदे सी, अज उत्थे झोना हुंदा है। ये तुमे, ये चिब्बड़, ये खखड़ियां, ये सारियां बरानी चीज़ां ने। छोलिया हुंदा सी, छोलियां दी खेती हुंदी सी। मीह पै गया ते बीजते। अज उत्थे कमाद हुंदा है, अज उत्थे कणक हुंदी है। कदे केवल तारा मीरा हुंदा सी, सरों हुंदी सी, तोरिया हुंदा सी। ये सारियां बरानियां फसलां हुंदियां सी भाई। तो अज भी श्री मुक्तसर साहब की धरती ते जून महीने विच दिन मनाया जाता है। पर एक वेला सी जदों पंथ ने फैसला किया सी कि इस इलाके विच पानी की घाट है, वड्डे जोड़ मेले नहीं हो सकते, ते इसनूं माघी दे जोड़ मेले नाल मना लिया जाए। मैं अज भी सोच रहा सी कि गुरु नानक साहब महाराज धरती ते केवल दूजे धर्मां दा खंडन करने वास्ते आए सन, क्योंकि अज बहुत सारे मेरे वर्गे प्रचारक वो इसे गल ते खड़े हुए ने कि गुरु साहब ने इस धर्म दे इन्हां संस्कारां नूं प्रवान नहीं कीता, इस धर्म दे इन्हां संस्कारां नूं प्रवान नहीं कीता। सतगुरु जी अपनी वड्डी लीक खिंच के गए ने। वो दूजियां दीयां लीकां मटाउण ते उन्होंने अपना समा नहीं लाया। हाँ, सानू सुचेत जरूर कीता है कि भाई जेड़ा परमेश्वर दी प्रेमा भगती है, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दिरड़ाया, बिन नामै जीवन बिरथा। हुण बिना नाम तो असी इहदे अर्थ करांगे कि जेड़े दुनियावी काम ने, धंधे ने, नहीं पाई। सतगुरु उन्हां दे प्रति सुचेत करते हैं जिन्हां नूं असी धर्म मन के बह गए हैं कि धर्म, कर्म, पखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। वो जेड़े कर्म धर्म ने, असी ना कुछ काम धर्म मान ले, मौली बननी, शायद मैं चीज़ां गिन लग्या तो मेरा सारा समय चले जाना है। माला पाउणी, कोई मत्थे ते तिलक ला लेना, कोई पेट ते चक्कर बना लेना, तीन 300 के करीब संसार दे विच धर्म ने। हुण वो जेड़े कर्म असी धर्म मान ले, कुछ काम उन्हां कामां नूं कहा भी नहीं जी ये काम तां धर्म दे काम ने। सतगुरु कहंदे ने नहीं, इन्हां दा धर्म नाल की संबंध है, इन्हां दा धर्म नाल कोई संबंध नहीं है। ये तां पखंड ने, ये तो विखाउण वालियां गल्लां ने। पखंड की हुंदा है कि घर परौणे आए ते बहू ने आके सस नूं मत्था टेकता ते सस की कहंदी है, कुड़िए पखंड ना करया कर। वो परौणे वेंदे ने भी होया की है बेबे नूं, भी नूंह ने आके मत्था टेकिया है ते बेबे जिहड़ी है वो इवें तड़फी है जिवें किते भूण लड़ गया होवे।
तो जो फिर बहू चाह लैन जाती तो वो फिर पुछते ने सारे भी बेबे होया की है, कहती आ तुहाडे बैठे ही पैरी हथ लाए, अगों पिछों तो चिमटा लैके घूमदी मंजी दे आले दुआले। पखंड हुंदा है जिहड़ा सिर्फ विखावे मात्र होवे, जिहड़ा सिर्फ तुसीं लोकां नूं विखा रहे हो वो पखंड है। वो कर्म जिन्हां नूं धर्म मन के तुसीं लोकां नूं विखा रहे हो, सतगुरु कहते हो प्रवान नहीं। जिदन जम टैक्स लावेगा, इन्हां चीज़ां ने टैक्स भी पूरा नहीं करना। मैं बहुत बारी बेनती की थी, जिहड़ी मेरी श्रेणी दे वीर ने ना, जदों असीं विदेशां च जाने आ लोग बड़ा कुछ देई जांदे ने, असीं सारा कुछ चुक लियाउने आ। वो पहला तेल लैण वाले कहंदे जी वेट ज़्यादा है तो 10-15 डॉलर पर केजी तुहानूं पे करना होएगा। अद्धा समान तो मेरे वर्गा उत्थे ही सुट दिंदा है, कहंदे इन्ने दा ते कपड़ा नहीं हैगा किलो के हिसाब नाल कि 15 डॉलर मैं इहदे किलो दे इत्थे भरां। फिर कुछ चीज़ां इदां दियां जिहड़ियां असीं इत्थे चुक लिआंदियां, वो फिर एयरपोर्ट ड्यूटी वाले खोल लैंदे ने। वो कहंदे जी आ तुसीं टीवी लैके आए हो, आ तुसीं आ चीज़ लैके आए हो इलैक्ट्रॉनिक, इहदी इन्नी ड्यूटी बनती है, अद्धियां चीज़ां असीं उत्थे सुट दिंदे आ। असीं कहने इन्ने दी ते आई नहीं जिन्ने दी तुसीं ड्यूटी बनाती है। तो कहंदे भी ना लियाओ, तुहानूं किहने किहा सी चुक के लियाउण लई। बंदिया जदों तू रब दे घर जाना है तो उत्थे भी ड्यूटी देनी पैनी है, टैक्स उत्थे भी लगना है। तू स्वासा रूपी पूंजी लैके आया सी कुछ होर कुछ विहाजण वास्ते, तू ते कूड़ा ही इकट्ठा करी गया। जिहड़ी वस्तु तू लैण आया सी वो वस्तु तो तू विहाजी नहीं, इकट्ठी नहीं कीती। ते सतगुरु महाराज भी कहते ने भाई इन्हां चीज़ां दी कोई अहमियत नहीं। ये कर्म धर्म पखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। कदे वासना तो रहत होके एक निमक मात्र समा कदे वाहिगुरु नूं याद करके वेखो भाई, लोक परलोक दे बंधन टुट जाणगे। पर असीं उत्थे ही खलोते हैं। तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान। अजे कल ही आपां रिओड़ियां खा के हटे हैं, एक एक रिओड़ी ते किन्ने किन्ने दाने लगे सी, उन्होंने तिल कहंदे ने। अज भी कोई सज्जणों पिन्नियां जिहियां लै आया, कहता ज्ञानी जी खा के वेखियो तिलां दी पिन्नी है। तिल एक छोटा जिहा दाना है, दालां दे दाने तो भी छोटा है। कोई मूंगी मसरी दी दाल भी चुकोगे तो ਉਹਦੇ तो भी छोटा दाना है। सतगुरु कहंदे तू तीर्थां ते जा, तू तप कर, तू दया कर, तू दान कर। आ चार ही चीज़ां रह गईयां साडे कोले। जां असीं तीर्थां दी यात्रा करदे हां, हुण यात्रा करन लई तुहानूं पता कितना टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, समा भी लगेगा। यात्रा बिना समा ते बिना पैसे तो हुंदी नहीं। जां तुसीं दया करोगे, तरस करोगे दूजियां ते, पर वो तरस की है? वो तरस साडा मक्खियां मच्छरां ते है, बंदियां ते नहीं है। इहदा अर्थ ये नहीं है कि असीं बाकी जीवां ते असीं करोप होना है। सवाल ये सी कि जिहदे ते दया करन दी लोड़ सी, दया करन दी लोड़ तां तैनूं अपने घर च अपने माँ प्यो ते सी, बच्चियां ते सी, अपने भैणां भरावां ते सी, अपने आले दुआले दे समाज ते सी। हुण तू दया कर दो ते सवेरे दुध किसी गरीब नूं दे आउणो, तुसीं जाके पिपल नूं पा दिता। दसो पिपल ने किहड़ी चाह बनाउणी सी भाई? किसी गरीब दे घर दिनों उहदे बच्चे दुध पी लैंदे। भाई मोती राम महरे ने गुरु के लाला नूं दुध पियाया सी, वो पिपल नूं दुध नहीं सी पाया उन्हें।
ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਟਾ ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਪਿੱਪਲ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਪਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ, ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਗਊ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 100 ਚੋਂ 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 90 ਬੰਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕਰਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਵੇਲੇ 25, 30, 40 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗਊ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਪ ਕਰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੰਗਮ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ
उत्थे भगत इकट्ठे होए होणगे, सब साधुआं दे अखाड़े आउणगे, उत्थे वखरे वखरे मंडल साधुआं दे शाही इशनान करनगे। उन्हां नूं मुबारक है, उन्हां दा भाई विश्वास है। पर गुरु नानक साहब पिता महाराज ने जिहड़ी सानू सिक्खी बख्शी है, ये बड़ा सौखा रस्ता है, बड़ा सुखैन रस्ता है। जिन्ना रब नूं कंप्लीकेटेड बनाया जा रहा है ना, वो इन्ना है नहीं है। और मैनू भी इदां ही लगता है कि जिन्ना धर्म नूं तुसी अंध विश्वास विच पा दिओगे, उन्ने लोग जिहड़े ने वो बैन हो जाते हैं। गल तो ठीक है, मैं तो कई बारी कहना भी असी सिख धर्म के प्रचारकों ने ठीक नहीं किया, सनातन मत के प्रचारकों ने बिल्कुल ठीक किया है। वो कहते जी घर का शिलान्यास करना है, वो कहते जी मूर्त कढ़ाओ। हुण मैनू नहीं पता कि प्रकृति नाल उस मुहूर्त का की फर्क है, पर पंडित जी नाल बड़ा फर्क है। उन्हें दस दिता भी इन्ने वज के इन्ने मिनट ते तुसी शिलान्यास करना है। पंडित जी अद्धा घंटा पहला आउंदे ने, अद्धा घंटा मगरों चले जाते हैं। मंत्री इधर तो इधर हो जाए, संतरी इधर तो इधर हो जाए, वो नींह पत्थर के अगे पिछे नहीं होंदा। मेरे वर्गे नूं टंगिया होंदा किली नाल भी कोई नहीं बाबा जी बह जाओ, तुसीं तुहानूं की होण लगा है। इस तरह विआह दा अगले मुहूर्त कढ़दे ने भी इन्ने वज के इन्ने मिनट ते फेरे होने ने। अगला अद्धा घंटा पहला आउंदा, अद्धे घंटे बाद खा पी के तुर पैंदा है। असीं सवेरे 10 बजे सूली टंगे हुन्ने आ ते शामी 5:30 बजे छड्डदे ने अगले। गलतियां साडियां ने। असीं कहता जी नहीं जी, गल समय की तो गल ही कोई नहीं, सारी गल ही समय की है। किहड़ी चीज समय तो बाहर ही परमात्मा ने बनाई है। और मैं आप जी नूं बेनती करा, समा ही समर्थ है। उही व्यक्ति उही गड्डी चलाउंदा है, उसे सड़क ते चलाउंदा है, उसे चौक तो रोज लंघदा है, कुछ नहीं हुंदा। एक समा ऐसा आउंदा है भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आपां की कहने आ, ये समा माड़ा सी। ना गड्डी माड़ी सी, ना चौंक माड़ा सी, ना बंदा माड़ा सी। बंदा उस तो पहला भी सियाणा सी, उस तो बाद भी सियाणा सी। वो 1 सैकंड 2 सैकंड वास्ते मत अगे पिछे होई है, वो समा ही इदां दा सी। ये सकल काल का किया तमाशा। ये ठीक है, असी अंध विश्वास विच पा के लोकां नूं कोई तांत्रिक विद्या नहीं पढ़ा सकते, पर सानू लोकां नूं एक गल ते समझाउणी चाहिदी है भी हर चीज दा समा है। तुसी दरबार साहब जाने हो, उत्थे प्रकाश हुंदा है, उत्थे सुखासन हुंदा है, उत्थे आसा की वार दी चौंकी हुंदी है, बिलावल दी चौंकी हुंदी है, सोदर दी चौंकी हुंदी है, आरती दी चौंकी हुंदी है। समा नहीं है। सानू समय दी कदर करनी चाहिए। मैं फिर बेनती करा, कैलेंडर समय दा कैलकुलेटर है, माप तोल है, होर कुछ भी नहीं है। असी कैलेंडर दे नाल लटकण नूं तैयार हां, समय नूं संभालण नूं तैयार नहीं है। सतगुरु रोज कहते ने बीत जय है, बीत जय है। की बीतदा जा रहा है? समा। जे बीत रहा तो सिर्फ समा ही बीत रहा है। तेरा वक्त तुरया जा रहा है। और तेरे वास्ते ये लिखिया होया है। जो लिखिया वो भी की, वो भी समा है,
संबत साहा की है, वो भी समय। धन गुरु अर्जन दे पिता महाराज अज सानू उपदेश करके समझाउंदे ने कि माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। माघ महीने का नाम है। अज हिंदुस्तान की बहु गिनती इशनान करने वास्ते तीर्थां ते जाती है, नदियां ते जाती है, दरियावां ते जाती है, धर्म स्थानां ते जाती है। पर साडे विच तां रोज दा इशनान है। साडे विच मकर संक्रांति का इशनान नहीं है। साडे विच तां हुक्म यह है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावे। रोज इशनान करना है तो रोज अमृत सरोवर संगत विच आउणा है। सानू तो रोज हुक्म है भाई, रोज इशनान करना है, रोज ही आके संगत करनी है। सतगुरु पिता महाराज सानू समझाउंदे ने कि माघ दे महीने दे विच मज्जन संग साधुआ, मज्जन कहंदे ने इशनान। एक शब्द है, जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नावै। जे पानी दे नहातियां मुक्ति मिलती होवे ते डड्डू तो रोज ही नहाउंदे ने, छाला मार मार के नहाउंदे ने। मैनू एक निहंग सिंह मिल गया, कहता ज्ञानी जी रोज केसी इशनान करते हो? मैं कहा नहीं बाबा जी, केसी इशनान का मतलब रोज सिर च पानी पाउने हो, केसा विच पानी रोज पाउने हो? मैं कहा नहीं। कहता फिर तो तुसी कुत्ता इशनान ही करते हो। मैं तेरा बाबा भला जे। मैं कहा वो की? कहता कुत्ते नूं चुक के भी पानी च सुट गया तो कहता सिर नहीं भिजण दिंदा। डड्डू छाल मार मार के नहाउंदा है छप्पड़ च रोज। सतगुरु कहते भी जे केवल नहातिया ही रब मिलता है, मुक्ति मिलती, तो पुछो साईं बुल्ले शाह नूं, कहते जे रब मिलता नहातिया धोतिया तो मिलता डड्डूआं मच्छियां। और डॉल्फिन वेखे उपर जा जा के फिर डिगदी थले। इन्हां इशनान साडे तो नहीं होना। साडे विच इशनान दी जिहड़ी वडियाई वो यही है कि कर इशनान सिमर प्रभ अपना। परमात्मा दी भगती वास्ते सुचेत हो। परमात्मा दी भगती वास्ते, क्योंकि भगती का जिहड़ा तरीका वो यही है, सावधान एकाग्रचित। एवें ढोल आके बह जाना, एवें बह के वासियां लई जानियां, ये भगती का तरीका नहीं है। थोड़ा समा बह जाओ, सुचेत होके बहना, सावधान होके बहना, ये भगती दी सब तो वड्डी रिक्वायरमेंट है। उत्थे जोत जगदी होवे जी, कुंभ रखिया होवे जी, नारियल लाल कपड़े विच बधा होवे जी, उत्ते मौली लवेटी होवे जी, ये कोई कंडीशन नहीं है। ये सब कर्म कांड ने, जिन्ने मर्जी करी जाओ तुसी। जरूरत है कि तुसी आप सावधान होवो। इसे करके कहते भी पाठ किवें करना चाहिए। कहते पाठ इदा करना चाहिए भी तुहानू आप नू सुनना चाहिए। पाठ इस तरह करो, भावें मुंह बंद करके करो, भावें मुंह खोल के करो, भावें चुप करके करो, भावें बोल के करो। अपना पाठ अपने कन्नां नाल सुनो। फिर कल देखो भला मन आसे पासे जाता है। मन जाता ही उदों है जदों तुसी अपना सुनना आप बंद कर दिता है। माघ दे महीने विच मज्जन करना है, इशनान करना है, पर यह इशनान पानी वाला नहीं है। पानी वाला इशनान ते सतगुरु ने क्या हर सिख ने रोज करना है भाई।
रोज। पर यह जिहड़ा माघ दे महीने वाला है, ये संग साधुआं धूड़ी कर इशनान, साधुआं दी संगत विच जाके उन्हां दी चरण धूड़ी दे विच इशनान करना है। ते वो है की है, हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। हरि दे नाम नूं ध्याउणा, हरि दे नाम नूं सुनना, हरि दा नाम दूजिआं नूं दान करना, इस महीने दी ये महानता है। आप बाणी पढ़ो, आप बाणी सुनो, ते जे तुहानूं कोई मिले उन्होंने कहो बैठ भरा तेनों मैं एक शब्द सुनाउणा। असीं 10-10 रुपये वंड के ते सस्ता जिहा राह कढ लिया, वो 500 की गट्टी खुला लेने असीं ते 50 सिखां नूं, चंगे भले सिखां नूं असीं मंगते बना दिंने आ भी करो हथ भी मैं तुहानूं 10 रुपये दिया। मैं रोज हाथ जोड़दा, दिओ 50 की थां ते एक नूं दे दिओ। पर उन्होंने इको शर्त ते दिओ कि मैं तेनों अपना दसवंध दिना, ये मेरा दसवंध है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो तू अज तो बाद मंग के रोटी नहीं खाएगा। तू ये अपना लाइसेंस बना ले, 3 व्हीलर पा ले, तू ये अपनी कोई रेहड़ी ला ले, तू ये कोई अपना छोटा मोटा कोई काम करना शुरू कर दे। YMCA वाले पासे तुसी वेखो भी लाइनां लगियां पईयां ने, सिर्फ साडी इस गलती करके। एडे एडे वड्डे सरमाएदार तुसी सिखो, एक एक दी बांह फड़ो कि चल बापू इत्थे पटड़ी ते नहीं सौना, चल तू मेरी फैक्ट्री अगे बैठ, मैं तेनों 10,000 रुपया देंगा। देखो गुरु हरकृष्ण साहब तुहाडे ते किन्ने खुश हुंदे ने। बीबियां बैठियां ने, लै जाओ इन्हां मावां ने साडियां, उनको बीबी तू इत्थे घर वेड़े दे बाहर इत्थे मंजी डाह के बह जा, आए गया दी राखी रखी तू, असीं तेनों 10,000 रुपया देंगियां। किसी नूं किरती बना देना पुण्य है, किसी नूं भिखारी बना देना पाप है। बंगला साहब दे नाल एक रैन बसेरा है। मैं खुद प्रबंधकां नूं बेनती की, मैं कहा जी गुरु हरकृष्ण साहब दे घर दे नाल एक गरीबां दी कलोनी है, रैन बसेरा, ते आपां उन्हां नूं लंगर छकाया करिए। कहण लगे छकाओ। मैं खुद जान लगा, मैं खुद शुरू किया, सेवादार लाए, संगत विचों प्रेमी लाए, जोड़ा घर वाले फड़ के कि तुसी 2 टाइम उत्थे लंगर छका के आना है। अखीर कन्नां नूं हथ लाने पए। वो कहंदे जी लंगर दे के जाना है तो दे जाओ, खावांगे तो मूड बना के। उन्होंने मतलब भी सारा दिन मंगते हैं, तो जे सारा दिन मंग के भी चज नाल रोटी ना खाधी तो मंगण का की फायदा होया। अखीर लंगर बंद करना पिया भी तुहाडे पौवे नाल तो नहीं ना दाल दी जा सकती, मां छोलियां दी, तुहाडे पौवे दे नाल ते खीर नहीं गुरु हरकृष्ण साहब दे घर दी वरताई जा सकती। इन्हां चों एक बंदा भी नहीं जे जिहड़ा सौफी सौंदा होवे। ये उन्हां दा कर्म है। पर मैं आप जी नूं बेनती करा, दान करो, दया भी करो, इशनान भी करो, तप भी करो। तप है किसी नूं ना बुरा वेखो भाई, ना किसी का बुरा सुनो। ये कन्नां दा किड्डा वड्डा तप है। कोई माड़ी गल करे कहो जी मैं नहीं सुननी, पर हालात साडे की ने, कोई माड़ी गल करे तो मैं कहना भरा जी मैं तुहाडी गल ते सुननी सी, पर मैं ना जल्दी चा, मैं ना तुहानूं गड्डी 'च जाके फोन करदा। फिर गड्डी 'च जाके फोन करीदा, वो सुना यार माड़ी गल सुनाउण लगा सी,
कदे धर्म की गल भी इदा मुड़ के दोबारा फोन करके पूछी किसी नूं। इदां दे तप करो, शरीर नूं साड़न वाले तप ना करो भाई। सतगुरु पिता महाराज कहते ने हरि दा नाम सुनो, हरि दा नाम सिमरो, ते हरि दा नाम सिमरन वास्ते दूजियां नूं भी प्रेरणा करो। ये गल तो असीं अपने बच्चों ने नहीं कर सके, तुहानूं दसो किवें कर दईए जी। कदे असीं सोचे भी साडे माँ बाप ने सानू की दिता सी? साडे माँ बाप ने सानू धर्म की शरधा, आस्था, भरोसा दिता सी। साडे बजुर्ग साडे तो पाठ कराउंदे हुंदे सी और वो विरासत अज तक साडे कोल है। अज तक उस विरासत ने सानू डोलण नहीं दिता, डिगण नहीं दिता। सतगुरु पिता महाराज कहते ने कि जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। मन तो हंकार चला जाएगा, पिछले जन्मां दे कर्मां दी मैल उतर जाएगी। काम क्रोध न मोही है बिन सै लोभ सुआन। ना काम असर करेगा, ना क्रोध असर करेगा, ना साडे ते मोह असर करेगा, ना साडे ते लोभ असर करेगा। लोभ दी नाल तुलना सतगुरु ने सुआण नाल दिती, कुत्ते नाल। लालच किहो जिहा है? सतगुरु कहंदे कुकर वर्गा है। हर झूठे भांडे च मूँह पाउंदा है तुहाडे कोल। अगर बंदा हर झूठे भांडे च मूँह पाउंदा है सिर्फ लालच करके पाउंदा है, नहीं तो झूठे भांडे नूं बंदा हथ ना लावे। कदे लाउने झूठे भांडे नूं हथ आपां? पर लालच होवे भी इहदी थाली च पकौड़े ने, इहदी थाली च पनीर है, इहदी थाली दे विच कुछ खाण नूं महंगी चीज़, वधिया चीज़ है, तो असीं थाली भी चुक लैंदे हां। सतगुरु पिता महाराज कहंदे इन्हां सारियां चीज़ां तो बच जाओगे। काम तो, क्रोध तो, मोह तो, लोभ तो, फिर की होएगा? सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। हुण वेखो ना, जदों तुसीं कामी नहीं, क्रोधी नहीं, मोह है जिहड़ा तुहानूं झूठ बोलण लई कहंदा है, मोह है जिहड़ा तुहानूं दूजियां दा हक मार के अपने नूं देण लई कहंदा है। ये सिर्फ मोह ही है कि बेगाना क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। बस ये मोह किहनूं कहंदे? इन्ना ही है। मोह जिहड़ा है तुहानूं दूजे नूं बेगाना विखाउंदा है ते अपने नूं प्यारा विखाउंदा है। वो जिहड़ा ये फर्क पाउंदा है उहनूं मोह कहंदे ने। ते जे तुसीं मोह छड्डदे हो ते जिहो जे बच्चे तुहाडे उहो जे बच्चे दूजियां दे भाई। ते जिहो जे तुहाडे अपने भरा ने उहो जे तुहाडे दूजे भी भरा ने। मोह दे विच खलो के बाणी नहीं पढ़ी जा सकती कि एक पिता एकस के हम बारक। मोह ते कहंदे हम दो हमारे दो, बस। मोह इस तो अगे वेखण ही नहीं दिंदा, सुण ही नहीं दिंदा, तुरन ही नहीं दिंदा। जदों मोह तो बच गए, लोभ तो बच गए, काम क्रोध तो बच गए, तो फिर बाकी की बचिया? बाकी तो सच दा रस्ता है भाई। फिर सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। जगत तुहाडी उस्तत करेगा। जगत उन्हां लोकां दे गुण गाउंदा है। आ किड्डी सोहणी गल उदन भाई जगदेव सिंह होरी करके गए ने कि अज तक एक भी नोबल प्राइज सानू नहीं मिलिया। यहूदियां नूं कितने मिले? सैकड़ियां की गिणती विच। पर ये तां मिलणगे जे आपां सच दे रस्ते ते तुरांगे। ते सच दे रस्ते ते तुरन वास्ते की चाहिदा है? साधुआं दा संग चाहिदा है। हरि परमेश्वर दे नाम दी भगती चाहिदी है।
रब की भगती तो बिना तुसी सच ते पहरा नहीं दे सकोगे। बड़े बड़े सोहने शब्द विद्वान सज्जन सानू सुनाते, कहते बिना इबादत तो शहादत नहीं है। ये पानी बाणी तो बिना कुछ भी नहीं है। बाणी पढ़ोगे तो पानी भी पवित्र हो जाएगा। कोई स्नान मुबारक है जिन्हें फिर बाणी पढ़ी है। रब की इबादत तुहानू शहादत तक लैके जाएगी। सच दे मार्ग ते तुरोगे तो तुहाडी जहान उस्तत करेगा। 8-60 तीरथ सगल पुन जी दया प्रवान। जीवां ते दया करनी, ये 68 तीर्थां दे इशनान तो भी वड्डी गल है। एक आदमी रोज तीर्थां ते तुरिया फिरदा है, उहदी इन्नी वडियाई नहीं है जिन्नी किसी एक सड़क ते बैठे व्यक्ति दी है जिन्हें हर लंघदे टपदे नूं पानी पिया दिता है। एक आदमी 68 तीर्थां ते जा आया, की पता किनू किनू पता है तुसी गए कि नहीं गए। उदों ही पता लगेगा जदों जेता भविया तेतो लविया। उन्नी लूलू भी कां वांगू कीती है, मैं उत्थे भी गया, मैं उत्थे भी गया, मैं उत्थे भी गया, तां लोकां ने सुनिया कि इन्नियां थावां ते बंदा मत्था टेक आया है। तुहाडी उस वडियाई दा किसी नूं कुछ नहीं पता। पर जिहड़ी जीवां ते दया करोगे वो तुहाडी हर व्यक्ति नूं पता होएगी। तो सच्चे पातशाह महाराज समझाउंदे ने, जिसनूं देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिन्हों रब ने अपनी इबादत दे दी है वही मनुख सारियां तो सियाणा है, सुगड़ है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। जिन्होंने अपना प्रभु वाहिगुरु मिल गया है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कहते ने कि मैं नानक उन्हां तो सदके जाना। माग सुचे से काढ़ियां जिन पूरा गुर मेहरबान। इस माघ दे महीने विच सुचा पवित्र सिर्फ उही कढ़िया जाएगा जिहदे ते गुरु मेहरबान होवेगा। ते गुरु किहदे ते किरपा करदा है? गुरु दी किरपा वास्ते सानू गुरु दियां शिक्षावां दा पालन करना होएगा। गुरु दे रस्ते दसे रस्ते ते तुरना होएगा। गुरु दे बख्शे ककार सानू धारण करने होणगे। रहता रखणियां होणगियां। करहता तो बचना होएगा। पर इत्थे तो सारा कुछ उल्ट पुलट है। असी इस गल तो सुचेत नहीं है। तो गुरु अर्जन देव पिता जी ने जिहड़ा अज सानू उपदेश दिता है 12 महाबाणी दे विच, वो उपदेश इहो ही है कि असी गुरमुखां दी संगत करिए, उन्हां दी चरण धूड़ी लईए, सच दे मार्ग ते चलीए, परमेश्वर दी भगती करिए, इन्हां काम क्रोध आदਿਕ वकारां तो अपने आप नूं बचाइए। ते हर यतन इसे गल ही करिए कि सानू गुरु की खुशी मिलनी चाहिए। किते ना किते जाके सानू थोड़ी समझ है। इसे करके साडे विआह शादियां दे कार्डां च लिखिया हुंदा है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सानू पता है जिन्हें मर्जी महंगे टेंट ला लीए, जिड्डी महंगी केटरिंग कर लीए, जिन्हें मर्जी VIP लोग बुला लीए, खुशियां ते पातशाहियां उस मालिक की किरपा तो बिना नहीं है। ये तो अडंबर है, ये तो शो अप है। करो जिन्ना मर्जी करो। ये तो लोगों को विखाउण वालियां गल्लां ने, विखाओ भाई। पर खुशियां ते पातशाहियां उदों ही होणगियां जदों सतगुरु अपनी नज़र करेगा, सतगुरु अपनी मेहर करेगा।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਢਾਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਿਆ ਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋਂ ਭਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਾਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।